एक बार दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए लिस्ट में, लिस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से, जबकि डिक्शनरी को रिप्रेजेंट किया जाएगा कर्ली ब्रैकेट से। इज इट क्लियर? जैसे कोई लिस्ट है तो उसके अंदर डेटा एलिमेंट होंगे और उन एलिमेंट को एक्सेस करेंगे थ्रू द इंडेक्स, मींस डेटा एक्सेस बाय इंडेक्स। मतलब यहाँ पर दो चीज होगी, यहाँ पर क्या चीज होगी, एक होगा डेटा एंड इंडेक्स, ठीक है। जबकि डिक्शनरी में क्या क्या होंगे बच्चों, डेटा इंडेक्स की जगह पर क्या होगा, इसमें की एंड वैल्यूज। तो वैल्यूज होंगी हमारी डेटा की जगह पर और की होगी हमारी इंडेक्स की जगह पर। सो डेटा एक्सेस बाय इंडेक्स, जबकि यहाँ पर वैल्यू एक्सेस बाय key. Okay, so we are actually try to understand the concept of dictionary through the difference of list. So you can say suppose there is a list L equal to, so suppose there is a list L equal to, then suppose I am giving some element 10, 20, 30, 40, 50. So this is a list, and suppose what I am doing, I am simply doing print L2. So here actually I am accessing the element through the index. So L2 simply means it will gives me the 30. Is it clear? So this is the method by which we are accessing the element of list through the index. Similarly, suppose there is a dictionary, so D equal to define the dictionary we have to use this curly bracket, और हम पेयर की फॉर्म में, की और वैल्यू के पेयर की फॉर्म में कोलन से सेपरेट करते हुए पूरी डिक्शनरी को बनाएंगे। सपोज मैं यहाँ पर बनाता हूँ 1, देन सपोज आई एम राइटिंग 1 1 1, और सपोज आई एम राइटिंग 2, then suppose 22, then 3, then colon 33. So this is a dictionary. So now you can see in this dictionary we have how many elements are there. In this dictionary how many elements? So suppose I want to access this value 11 or 22 whatever. So suppose I am writing print D and then square bracket 2. So what I will get? I will get 22. So you can see this is the only difference between the list and the dictionary. In the list we are accessing the element by the index, while in the dictionary we are accessing the element through the index, through the key. ठीक है? Now one thing, suppose I want to add an element inside the list. List के अंदर suppose मैं कोई element add करना चाहता हूँ. So how I am adding the element to the list? By using the append function. या फिर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ L0 equal to 22, what it will do? L0 equal to 22 and then suppose I am printing L, what it will print? 10 की जगह पर क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा. So it is changing the element of the list, means we will get 22 instead of 10. So similarly, suppose here also you want to change the certain values in the dictionary. Suppose 1 to this, suppose I am writing here D2 equal to suppose 55. So सिंपली देखो, एक लॉजिक आप पकड़ लीजिए कि लिस्ट के अंदर इंडेक्स होता है, यहाँ पर की होती है, बस सिंपल सा कंसेप्ट है. D double quote 2 equal to 55, then suppose I am printing this dictionary print D, then what it will print? It will print the dictionary 22 की जगह पर 55 आ जाएगा. So it's very simple. So this is the way by which we can change the value. This is the way by which we can change the value in the dictionary, we can change the value in the list. Suppose I want to add a new element in the list. So what I should do? I should do like this. Suppose this is the index 0, 1, 2, 3, 4. At fifth index I want to add, suppose I am writing L5 equals to 55, then I am printing print L. So it will simply add element after the list at the fifth index. ये 55 ऐड हो जाएगा इसके लास्ट में ऐसा करने से. इसी तरीके से डिक्शनरी में अगर आप ऐसी कोई की देते हैं जो कि उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, सपोज मैं लिखता हूँ D new equal to 155, so what will happen? अगर ये की उसके अंदर मिलती है तो उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा, अगर वो की उसके अंदर नहीं मिलती है देन इट विल ऐड अ न्यू एलिमेंट. मीन्स इसके अंदर क्या ऐड कर देगा? ये न्यू नाम की ऐड कर देगा और उसकी वैल्यू क्या कर देगा? 155 कर देगा. सो दिस इज द वे बाय विच वी आर एडिंग अ एलिमेंट इन द डिक्शनरी, राइट, एंड दिस इज द वे बाय विच वी आर एडिंग अ एलिमेंट इन द लिस्ट. ये सही है क्या? ये वाला लिस्ट में इसी तरीके से आइटम ऐड करते हैं क्या? अपेंड करते हैं.
और देखिए ऐसे यस नहीं सर। करते हैं आइटम अपेंड। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया यहाँ पर। लिस्ट के अंदर अगर आप L5 लिखेंगे तो इस केस में एरर देगा। एरर क्या होगी? आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स। It will gives you the error. You cannot add the element like this. You can change the existing element, but suppose you want to add a new element, then we have to use the append function. So L equal to 10, 20, 30, 40, 50. At the fifth index, I want to add a new element 55. Let I execute this. एरर। List assignment इंडेक्स index out of range. तो आपने तो बोला ही नहीं, आपने तो कहा हो जाएगा ऐसे। What is the error? This gives me the error. Index error. So what should I do? To add the element inside the list, I have to do like this, means I have to write L dot append 55. Means this is the way by which I can add a new element in the list. Suppose I am writing, then you can see at the last I am appending the element. Then I will get Yes, sir. this answer. लेकिन डिक्शनरी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। डिक्शनरी के अंदर आप डायरेक्ट भी अगर ऐसा कोई इंडेक्स लिखते हैं जो कि उसके अंदर नहीं मिलता है, ऐसा कोई की लिखते हैं जो की उसके अंदर नहीं मिलती है, तो लास्ट में आप उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते। थोड़ा और आगे चलते हैं हम। देखिए दोनों को मैं कंपेयर करते हुए बता रहा हूँ ताकि लिस्ट का भी रिवीजन हमारा हो रहा है और नए कंसेप्ट को भी हम आसानी से सीख रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको डिक्शनरी को ट्रेवर्स करना है, जिस तरीके से लिस्ट को हम ट्रेवर्स कैसे करते थे, ट्रेवर्सल इन लिस्ट, तो लिस्ट को ट्रेवर्सल कैसे करते थे, तो लिस्ट को ट्रेवर्स करने के कई सारे मेथड थे। सपोज कोई लिस्ट आपकी है, L इक्वल टू यही लिस्ट है मेरे पास 10, 20, 30, 40, 50, और मैं क्या करता था, एक लूप लगाऊं फॉर I इन L, और मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूं किसको, I को, प्रिंट I। तो क्या प्रिंट होता था, ये बेटर ये है कि मैं यहाँ पर लिखूं, क्योंकि वर्ड पे जब मैं लिखता हूं तो वो कैपिटल स्मॉल कर रहा है बार बार। फॉर आई इन एल, देन सपोज आई एम प्रिंटिंग आई, तो व्हाट इट विल डू, मतलब आई के अंदर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर उसका एलिमेंट आ रहा है। आई के अंदर क्या आ रहा है, उसका एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, मीन्स दिस इज द वे बाय विच वी कैन ट्रेवर्स अ लिस्ट। दिस इज अ वेरी सिंपल वन। सो द आउटपुट इज सिंपली वी आर गेटिंग द फंक्शन। अगर मैं डिक्शनरी में ट्राई करता हूं, देखिए डिक्शनरी को मैं लेता हूं, सो आई एम मेकिंग अ लूप इनसाइड द डिक्शनरी, देन सपोज आई एम प्रिंटिंग द आई, सो व्हाट विल हैपन, इट विल जस्ट प्रिंट द कीज। तो देखिए बच्चों बहुत इंटरेस्टिंगली, जब मैं यहाँ पर आई को प्रिंट कर रहा हूँ, देन यू कैन से जो मैं लूप लगा रहा हूँ, मतलब ये लूप किस में चल रहा है, मेरे पास कीज के ऊपर चल रहा है। सो व्हेन आई एम प्रिंटिंग आई, देन यू कैन सी आई एम गेटिंग द कीज। तो अगर मुझे वैल्यूज चाहिए तो क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, डी स्क्वायर ब्रैकेट आई, क्योंकि देखिए जब मैं आई को प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे पास कीज आ रही हैं, और जब उन कीज की वैल्यू मुझे चाहिए तो डी स्क्वायर ब्रैकेट पे जब मैं की लिखता हूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाती है। तो डी स्क्वायर ब्रैकेट में आई लिखूंगा, देन यू कैन सी आई एम गेटिंग दिस वैल्यूज फॉर द कोरस्पॉन्डिंग कीज। व्हेन आई एम प्रिंटिंग दिस, तो देखिए यहाँ पर लिस्ट में जब आई लिस्ट के अंदर चल रहा था तो आई के अंदर डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू आ रही थी और वैल्यू से ही काम हो रहा था, जबकि यहाँ पर जब आई चल रहा है तो वो की के ऊपर काम कर रहा है। अगर आपको इंडेक्स के ऊपर आई को अगर मूव करना होता था तो आपको पता था कि आई को मैं यहाँ पर फिर रेंज फंक्शन यूज करता था, फिर यहाँ पर एल करता था तो मुझे एलिमेंट मिलता था। ठीक है, तो अगर मैं लिस्ट की बात करूँ, लिस्ट के अंदर मुझे अगर इंडेक्स के ऊपर लूप चलाना है तो डिक्शनरी के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी वो कीज के ऊपर चलता है। अगर कीज को मैं इंडेक्स के साथ समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पर अगर मैं लिस्ट लूं तो यहाँ तो आई के अंदर मेरे पास वैल्यू आ रही है। अब मैं अगर इसको इंडेक्स वाइज चलाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रेंज, क्योंकि इसमें जो मेरा इंडेक्स है वो क्या है 0 to 4 है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, रेंज 5। ओके, तो यहाँ पर आई के अंदर क्या आएगा, देखिए अभी आई के अंदर आ रहा है मेरे पास इंडेक्स, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एल आई, देन यू कैन सी आई विल गेट द element 10, 20, 30, 40, 50. So ये logic था। Suppose I want to print keys and values both, then suppose this is a dictionary. So inside the I have a key and inside the DI I have a value. So you can print I as well as the DI. So it will gives you the keys and values. To access keys and value we need to use keys and values. So there are two functions also. So to simply print all the keys, then we can use d dot keys, so it will gives you the all the keys, and d dot values, then it will gives you all the values. So d dot keys function will display only keys, and
d dot values function will display only values. So nothing special in this. Suppose we just want to print all the keys. So suppose this is a dictionary. Suppose I am writing print d dot keys. So keys is especially a function which gives you all the keys. So you can see you are getting all the keys 1, 2 and 3. And similarly, suppose you are using print d dot values. So this is a function which gives you all the values of a dictionary like 11, 22, 33. So this gives you features of dictionary. क्या features है? First thing is it is an unordered set. Dictionaries is an unordered collection of key colon values pair. So nothing special in this. Not a sequence. Like list, string and tuple, it is not a sequence because it is collection of unordered element. Whereas a sequence is a collection of indexed number to keep them in order. तो चूंकि यहाँ पर कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है, यहाँ पर कीज होती है जो कि यूजर डिफाइंड होती है, तो ऐसे इसको अनऑर्डर्ड माना जाता है. कीज आर यूज्ड फॉर इट्स इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग के लिए हम कीज को यहाँ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पाइथन कीज कैन बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप, मीन्स स्ट्रिंग एंड नंबर्स आर ऑफ इम्यूटेबल टाइप, देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज ए कीज. तो की जो है वो इम्यूटेबल टाइप होनी चाहिए. ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट. So suppose d equal to, suppose this is a dictionary 0 colon key 0 comma 1 colon key 1 comma 3 colon this. तो यहाँ पर आप देखिए कि जो की है वो देखिए यहाँ पर तो क्या लिया है, 0 लिया है, 1 लिया है, ये क्या है, नंबर है. तो नंबर भी आपका इम्यूटेबल होता है. ये क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल है. ये क्या है, टपल है, ये भी इम्यूटेबल है, और ये भी स्ट्रिंग है तो ये भी इम्यूटेबल है. मतलब इन सबको एज ए की आप यूज़ कर सकते हैं. तो डी 0 करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, की 0 प्रिंट हो रहा है. डी 1 करेंगे तो की 1 प्रिंट हो गया. डी 3 करेंगे तो देखिए ये प्रिंट हो गया, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी. डी स्क्वायर ब्रैकेट, अब देखिए ये इसकी की थी तो इसको ऐसा कैसा ही लिखेंगे टपल की फॉर्म में, टपल 4,5. हालांकि टपल हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है, फिर भी हम देख सकते हैं. तो ये की है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है. डी फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हेलो लिख रहे हैं, देन वी आर गेटिंग द 6. और क्या स्पेशल फीचर्स है, की शुड बी यूनिक. की क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, बिकॉज द कीज आर यूज टू आइडेंटिफाई वैल्यूज, सो दे शुड बी यूनिक. लेकिन देखिए अगर आप डुप्लीकेट की बनाते हैं तो डुप्लीकेट की इज ऑल्सो अलाउड हियर. ठीक है, वो कैसे होती है इसके बारे में हम बात करेंगे. वैल्यूज ऑफ 2 यूनिक की कैन बी सेम, लेकिन 2 की वैल्यू सेम हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिक्शनरी इज अ म्यूटेबल, हेंस वी कैन चेंज वैल्यू ऑफ अ सर्टेन की. फॉर दिस सिंटेक्स इज, अगर कोई वैल्यू को चेंज करना है, डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट में की लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी. ये तो मैंने बता ही दिया. डी और स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिख के दिस इज स्ट्रिंग लिखेंगे तो 3 की वैल्यू जो पहले की एज स्ट्रिंग था तो ये दिस इज स्ट्रिंग हो जाएगी. सो लाइक दिस वी कैन चेंज द एग्जिस्टिंग वैल्यू. इंटरनली इट इज स्टोर्ड एज अ मैपिंग. इट्स की कोलन वैल्यूज आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया इंटरनल फंक्शन कॉल्ड हैश फंक्शन. सच प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इज ऑल्सो नोन एज मैपिंग. ठीक है, तो अंदर की इंटरनली बात की गई है कि डिक्शनरी को कैसे स्टोर किया जाता है. वर्किंग विद डिक्शनरी, हियर वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस ऑपरेशन ऑफ डिक्शनरी लाइक एलिमेंट एडिशन, अपडेशन, डिलीशन ऑफ अ एलिमेंट. बट फर्स्ट वी विल लर्न क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी. सो डिक्शनरी इनिशियलाइजेशन, तो डिक्शनरी इनिशियलाइजेशन तो वही वाली बात है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं. एडिशन ऑफ पेयर, अगर किसी एलिमेंट को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे. जैसे कोई एम्प्टी डिक्शनरी आपने बना दी, फिर आप एम्प्लॉई, फिर की वैल्यू कर स्क्वायर ब्रैकेट करते हुए आप उसमें एलिमेंट ऐड करते हुए चले जाइए तो एलिमेंट उसमें ऐड होते जाएंगे, क्योंकि वो पहले उसमें एलिमेंट मिलेगा नहीं तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट उसमें ऐड होता जाएगा. सो लाइक दिस वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ डिक्शनरी. जैसे इसमें हम सिंपल सा एक क्वेश्चन बना सकते हैं. ठीक है, एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाइए, फिर उसमें 2 पेयर एलिमेंट, 2 पेयर एलिमेंट्स को उसमें ऐड कीजिए. सो हाउ आई कैन डू दिस, सिंपली सपोज डी इक्वल टू देन empty bracket. So this is an empty dictionary, then D, then suppose my first one is suppose Dinesh equal to 22. So what it will do, it will simply search this key inside this dictionary, as this is not found, so it will add a new pair having a key Dinesh and having the value 22. Then suppose D, then suppose Amit equal to 55. Then suppose I am printing D. So what it will happen, it will simply print a dictionary having 2 elements, Dinesh 22 and then Amit
55. So like this I can also create a dictionary. So this is a very simple method. Means empty dictionary, then I have added the 2 element inside the dictionary. चलिए एक और क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं। तो हमको एक डिक्शनरी बनानी है जिसके अंदर 5 स्टूडेंट के नाम हो, वो एज अ की हो, और जो मार्क्स हैं वो उसकी वैल्यूज हो, और रन टाइम पर करना है। सो आई हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी। सो 5 स्टूडेंट के नाम इनपुट करना है और फिर उनको मुझे ऐड करना है। सो फर्स्ट आई सिंपली क्रिएट अ एम्प्टी डिक्शनरी। अब देखिए ऑब्वियसली मैं लूपिंग का यूज़ करूंगा क्योंकि बार बार 5 अलग अलग तो इनपुट नहीं करूंगा, तो एक लूप लगाता हूँ फॉर आई इन रेंज 5। तो ये 5 टाइम्स मेरा ये लूप चलेगा, और मैं इसमें 2 वेरिएबल ले लेता हूँ। एक वेरिएबल स्टूडेंट नेम ले लेता हूँ, उसको इनपुट करूंगा, और एक में मैं उसके मार्क्स इनपुट करूंगा। तो सपोज मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नेम इक्वल टू, एंड देन सिंपल इनपुट, जैसे मैंने लिस्ट के अंदर काम किया था कुछ वैसा, एंटर। ठीक है, देन आई टेक अ वेरिएबल सपोज मार्क्स इक्वल टू, देन इसको कन्वर्ट करूंगा मैं स्ट्रिंग को इंटीजर में, इनपुट एंटर स्टूडेंट मार्क्स। तो अब देखिए 2 वेरिएबल में वैल्यू इनपुट हो जाएगी। अब क्या करना है, इनको मुझे डिक्शनरी में ऐड करना है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, अब एज अ पेयर मुझे डिक्शनरी में ऐड करना है इसको। तो क्या लिखूंगा, वेरी गुड, डी स्क्वायर ब्रैकेट में नेम इक्वल टू मार्क्स। तो ये क्या करेगा, पहली जो वैल्यू आप लेंगे वो नेम के अंदर आएगी, वो एज अ की बन जाएगा, और जो मार्क्स होंगे वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। दिस इज वेरी सिंपल। देन यू कैन सिंपली प्रिंट डिक्शनरी दैट व्हाट वी हैव क्रिएटेड। एंटर स्टूडेंट नेम, सपोज आशीष, marks are 33, then suppose Amit, marks is 33, Dinesh, marks is 56, then suppose anything, Ram 98, then anything, Tony is having 34. So you can see we are getting a list having the 5 students name and the corresponding element, corresponding value. Like this we can create a dictionary at runtime. So let's see what are the other things. So like this we can create working with dictionary. हाँ, एक जो मैं चीज़ बता रहा था आपको कि डिक्शनरी के अंदर जो कीज़ हैं, कीज़ आर शुड बी यूनिक। लेकिन अगर यूनिक नहीं है वो, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की हेल्प से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन 3, फाइंड आउट द आउटपुट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी ले लेता हूँ। सो यू कैन सी हियर, सपोज आई हैव समथिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन विच you can see here we have a key 1 and here we also have a key 1. Then suppose I am trying to print D. So what it will, okay, capital D है, small d है, D. What it will do, you can see it is printing the dictionary 122. So where is this 111? Where is this 111? Suppose I am giving this 1. Then it gives me only 22. यहाँ पर एरर तो नहीं दे रहा, वो कीज को सेम तो नहीं ले सकते, क्या को कहीं समझाया है इसने इस कंसेप्ट। तो यहाँ पर जब मैं कर रहा हूँ तो इसने क्या किया है कि जब प्रिंट कर रहा हूँ तो मतलब पहला एलिमेंट ही को इसने ट्रीट ही नहीं किया, मतलब वो एक ही एलिमेंट ट्रीट किया, बाद वाला। अगर जैसे मैं यहाँ पे 20 और इसको भी मैं 1 ही कर दूँ, तो यहाँ पर तीनों को मैं 1 कर दूँ, तो क्या ये एक ही एलिमेंट मानेगा फिर 33 को एलिमेंट मान रहा है, और डी को प्रिंट कर रहा हूँ तो एक ही एलिमेंट मान रहा है, लास्ट वाला। मतलब शुरू वाले तो उसने फिर गायब ही कर दिए। तो सपोज फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड डी इक्वल टू दिस, देन इट गिव्स यू द ओनली 1 एलिमेंट डिक्शनरी हैविंग द लास्ट एलिमेंट। सो इट इज नॉट गिविंग यू द एरर, बट इट ओनली ट्रीटिंग द लास्ट यूनिक की, राइट। उसके पहले की कीज को वो हटा देगा। अगर मैं इस बीच वाली को 2 कर दूं तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक मिनट 35 करता हूँ। कौन सी वाली को ट्रीट किया है, हाँ पीछे वाली को ट्रीट कर रहा है, 135 को ट्रीट कर रहा है और फिर 222 को ट्रीट कर रहा